Thank you for taking out time, sir. Actually, a cross examination is a important part of trial before the trial court. First, FIR registered. After registration of FIR, investigation officer appointed. It is depend upon the under section 60 days time for filing the charge sheet, either 90 days filing for the charge sheet. It depend upon the other sections, depend on the seriousness of the case. After filing charge sheet, after supply the copy of charge sheet to the accused, role main role is start by the defense counsel to defend his client. First, his client came with charge sheet. Then charge sheet is a important part of a cross examination. First, each and every lawyer, either prosecution side, either defense side, or judicial officer, or any NGO, or any other persons who is a related, like media persons also, number of cases, media trial. Then media reporters also appointed as a law graduate. So they also need to scrutinize charge sheet, copy of charge sheet. After completion of charge sheet, first thing, defense counsel is the important responsibility of a defense counsel to go on through on each page of the charge sheet. If some pages are missing, either legible or ineligible, that is also a part of charge sheet. Then if you found and get all pages are clear, connectivity of the all papers, incident, synopsis is are clear, date of events, like list of dates, it says each and every is clear, then argument on charge, argument on the point of charge, start before the trial court. If case is cognizable, either session trial or not trial, if case is session trial, then first case sent by the Metropolitan Magistrate to the session court. And session court satisfied with the charge sheet, after then defense counsel start the argument on the point of charge. When argument on the point of charge start, then each and every fact may be plea of alibi. If defense counsel thinks so, that his client was not present at the time of incident. Just example, a murder took place in a night in place A, any city, village, shop, commercial place, anywhere. And defense counsel very much understand with the very much evidence and proof that his client was not present at the point of A. He was away from 400, 300, 100 kilometers. Then it is a part of argument at the time of charge. He should submit each and everything. Then prosecution advocate will say it is a matter of plea of alibi. It is a matter of evidence. Then no, it is not matter of plea of alibi. It is not matter of evidence. It is a matter of charge and discharge. This the process. When this process completed, then it is depend upon the court. Either charge will frame or he accused will discharge. If accused will discharge, then no problem. That will be very happy moment for the defense counsel. And that moment was very missing and for sorrow on the part of prosecution. If prosecution go high court against the discharger, then next process will start. And if charge frame against you, then process of cross examination start. First witness appear, PW1, just a PW1. Most in the cases, first witness called by the court, trial court, was a complainant.
either eyewitness or a victim, then when he appear before the court for deposition of his statement, then he will found first chief examination was conducted by state counsel, prosecution, public prosecutor, standing counsel. He submit his all complete case before the trial court as a chief statement. I think so. You everybody, a student of law, note down chief examination. Chief examination is an important part before cross examination. After completion of chief examination by the prosecutor, then witness come in the hand of defense counsel, and defense counsel start cross examination. Then it is a very important point. Defense counsel at the time of cross examination already gone through complete charge sheet. He is ready to contradict statement between PW1, PW2, statement of 161 CRPC. First chief examination was conducted of PW1 by the prosecution. But defense counsel very well aware each and every fact of the statement of 161 of the all the witnesses, which already examined by the investigation officer. That is the part of charge sheet. Then he came in front of witness box. Witness is there. Chief examination was completed. It is very necessary to receive the copy of chief examination to the defense counsel. When he prepare a cross examination, then he start the first contradiction of the 161 and chief examination. It is wrong to suggest that it is wrong to suggest. It is very clear. This is the normal word at the time of cross examination. और इससे बड़ी बात क्या है कि जब गवाह को आप क्रॉस कर रहे होते हैं एक एडवोकेट के रूप में वहां खड़े, तो उसके भाव, उसके मनोभाव, अगर झूठ बोल रहा है उसकी आंखों में फर्क आएगा। वो रट के आया है, रट्टू तोता है, तो केवल वही बोलेगा। जब आप इधर उधर की बातें शुरू करेंगे, दिस वे दैट वे, इधर जाए उधर जाए, कहा था, जैसे सपोज करिए आपके पास एक विटनेस आया एनडीपीएस का, उससे स्मैक बरामद हुई। स्मैक उसकी बरामद पुलिस ने उसे पकड़ा कहीं से, लेकिन पुलिस क्या उसके घर से नहीं दिखाती, सर्च वारंट होता नहीं, तो उसे कहीं रोड पे दिखाएगी। रोड पब्लिक चलता हुआ तो आप अगर घटना स्थल का इंस्पेक्शन कर ले तो आप एक बहुत अच्छे लॉयर हैं, जनरली मुझे भी करना पड़ता है। अब घटना स्थल इंस्पेक्ट कर ले तो आपको वहां का सिजरा पता चल जाएगा। एक नक्शे में बना हुआ, नक्शा इज ए पार्ट ऑफ चार्जशीट, वो आपको दिख रहा है नक्शा, साइट प्लान जिसे कहते हैं घटना स्थल का। चाहे वहां से रिकवरी हुई एनडीपीएस तो वो घटना स्थल है, मर्डर हुआ है तो वो घटना स्थल है, मोलेस्टेशन किसी के साथ हुई तो वो घटना स्थल है, रेप हुआ है तो वो कमरा घटना स्थल है, वो बेड घटना स्थल है, वो होटल घटना स्थल है। तो आप उसे इंस्पेक्ट कर ले पहले तो अच्छा है। फिर आप जब शुरू करेंगे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन, तो उससे वो बातें पूछना शुरू करेंगे जो उसे सच्चाई तो हो सकती है। जैसे अभी इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप लोग जुड़े हुए, आप सब जुड़े हुए, आख्या जी भी जुड़ी। अगर मैं आख्या जी की ऑफिस की जो अलमारियां हैं उनमें ये पूछ लूं, आख्या जी आपकी अलमारी नंबर 2 में कितनी बुक रखी, तो आख्या नहीं बता पाए। आख्या ने रखी, आख्या ने परचेज की, लेकिन आख्या के सामने नहीं है तो बता नहीं पाए। आख्या के यहां आया हुआ एक गेस्ट जो गया है, सच है, इट इज अ फैक्ट, सच है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि आख्या के ऑफिस में कितनी चेयर थी, कितने पेन रखे थे, कितनी फाइल रखी थी, मोमेंटो कितने रखे थे, तो उसे कहना पड़ेगा मुझे नहीं पता। अगर ये भी पूछ लिया जाए आख्या के ऑफिस अगर फर्स्ट फ्लोर में है, तो जब चढ़ के गए थे आख्या के ऑफिस में तो कितनी सीढ़ियां थी, गेट पर कितने नंबर की गाड़ियां खड़ी थी, उनका नंबर क्या था, मेक क्या था,
कलर क्या था, ये रिलेवेंट नहीं है। अब आपके सामने आएगा रिलेवेंट, कोर्ट इस बीच में इंटरप्ट करेगी। इट इज नॉट रिलेवेंट मिस्टर सिंह, मिस्टर या जोसेरा मारिया या नागराजन या अविद्या, ये या सेडी, ये रिलेवेंट नहीं है। तब आप कहेंगे नहीं इट इज रिलेवेंट है, क्योंकि वो गवाह कह चुका होगा मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता। गवाह ये तो बोलेगा कि घटना का दिन कौन सा था, तारीख रट के आया वो बोलेगा गवाह कि इस दिन ये था, शुक्रवार था। लेकिन जब आप उससे ये पूछेंगे इस साल में, जैसे आज का दिन है, कोई आज के दिन की गवाही पूछे कि आज 26 तारीख है, 26 तारीख को जो ये आपकी हमारी लाइव हो रही है, अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा है आपके साथ चल रहा है तगड़ा, आपके साथ हो रहा है आपका पूरा कॉन्फ्रेंस। अगर मैं 8 साल बाद जैसा गवाही आएगी, 5 साल बाद, 4 साल बाद मैं पूछूं आख्या उस दिन क्या दिन था, दिन तो आप बता देंगी, लेकिन उससे पहले होली कितने दिन पहले आई थी, उसके कितने दिन बाद रामनवमी आई थी, आई है, आएगी, लेकिन आप नहीं बता पाएंगे कितने दिन बाद रामनवमी और कितने दिन पहले होली आई थी। तो आपका उत्तर आएगा आई डोंट नो, मुझे आई डू नॉट रिमेम्बर, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। जब आपके पास एक लंबी फेहरिस्त हो जाएगी नहीं पता नहीं पता नहीं पता की, तो आप अपने केस को विन कर रहे होंगे, प्रोसिक्यूशन का केस झूठा पड़ रहा होगा कि गवाह को ये नहीं पता कि ये क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो वो क्रॉस आपके फेवर में होता चला जाएगा और आप वहां पूछेंगे, जैसे मैंने रोड की बात की, तो उससे पूछेंगे ये बात तो सही है, लोग वहां आ जा रहे थे, वो कहेगा हाँ। किसी से आपने गवाह के लिए रोका, वहां से कितने पुलिस वाले निकले तुम्हारे सामने, कितनी गाड़ियां निकली, कितनी देर तक रुके, वहां किस पर बैठ के बनाया। जनरली पुलिस क्या कहती है, मैंने रोड पे ही बनाया, ऐसा अभी तक सीआरपीसी चल रही है, सारी चार्जशीट रोड पे बनाई है, बनाता कोई नहीं है। कोई इंस्पेक्टर, कोई सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएट हैं, अच्छी फैमिली से अपॉइंट होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कोई रोड पे नहीं बनाता है, सच्चाई है, डेड जॉब, जजेस को ही पता है। लेकिन आप पूछिए ना, वहां पे बैठ के बनाया था, कितनी देर बैठे थे वहां, क्या सड़क पे ही बैठ गए थे, क्या वहां कुर्सी तो थी नहीं, कुर्सी तो कोई लाया नहीं, कुर्सी तो वहां आएगी नहीं, तो कैसे बैठे, वर्दी पहन के बैठे थे, वो कहेगा हाँ। लेकिन कोर्ट को लगेगा ये झूठ बोल रहा है, महा झूठा आएगा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पूरी तरह से उसको करके गवाह को डैमेज करना है, डेंट करना है, उस पर हथौड़े बजाने हैं। अगर आप डिफेंस कौंसिल, प्रोसिक्यूशन की तरफ से हमारे बहुत से बच्चे आपके यूनिवर्सिटी के बहुत से प्रोसिक्यूशन के जाएंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जाएंगे, अब वो पूछेंगे हमारी बात तो बात बताइए सर, हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे, कुछ जजेस बनेंगे, तो जजेस का क्या रोल है क्रॉस एग्जामिनेशन, जजेस का तो क्रॉस एग्जामिनेशन में सुनने का रोल है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो बनेंगे वो जितना अच्छा गवाही अपनी लिखा सकते हैं अपने समय में, जब गवाह उनके हाथ में होता है, जब उनके हैंड में होता है, तब जितनी अच्छी गवाही लिखा सकते हैं वो लिखा है। लेकिन जब डिफेंस के हाथ में होता है, इंटरप्ट नहीं कर सकते, इस सीआरपीसी कहती है, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बाद में तो बहुत उनके समय आएंगी बातें, ये मैं लिखा देता, ऐसा मैं कर लेता, ऐसा मैं बता देता, मैं याद करा देता होली कब थी, मैं याद करा देता दिवाली कब थी उस साल में, मैं याद करा देता रेखा गुप्ता ने चीफ मिनिस्टर की शपथ किस दिन ली। जब रेखा गुप्ता की चीफ मिनिस्टर की शपथ तुम्हें याद नहीं है, तो तुम्हें 5 साल पहले की घटना का दिन कैसे याद हो सकता। ये बात समझ से आती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हमें डेंट करना पड़ता है। तो ये 3 भागों में विटनेस बनता है। आजकल जो पॉक्सो केसेस हैं, महिलाओं से जुड़े केस हैं, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग होती, कमरे बंद में, डिफेंस काउंसिल, प्रोसिक्यूशन, विक्टिम, जज और स्टेनो होता है। ऐसा प्रोसेस कर दिया गया है, कमरा बंद होता है, इन कैमरा, जिसे कहते हैं गवाह की संवेदनशीलता बनी रहे, और पर्दा लगा दिया जाता है गवाह के साथ, उसके साथ वहां खड़ा होता है वो गवाह। तो ये जो प्रोसेस है ये इस तरह से चल रहा है, और ये है समय समय पर डिपेंड करता है, समय समय पर वो था। उसके बाद गवाही के बाद आप डिफेंस एविडेंस दे सकते हैं, कितने गवाह आते हैं उनके साथ डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कराना होता है। अगर कोई सबमिट कर रहा है डॉक्यूमेंट तो एग्जिबिट कराना होता है।
फोटोकॉपी है तो मार्क कराना होता है, ओरिजिनल लाए हैं तो ओरिजिनल दिखा के एग्जिबिट कराना होता है। एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट जो आता है उसी PW 1 2 3 4 5 के साथ। ये प्रोसेस लंबा प्रोसेस होता है, गवाहों की लंबी फहरिस्त होती है, लेकिन उसमें से कंट्राडिक्शन जब निकालते जाएंगे, और कंट्राडिक्शन को कोर्ट में रखना होता है। प्रोसिक्यूशन चाहता है कोई कंट्राडिक्शन ना हो, लेकिन डिफेंस चाहता है कंट्राडिक्शन की लाइन लग जाए। जज अगर निष्पक्ष जज है, वाइस जज नहीं है, तो निश्चित तौर पर दोनों चीजों को बैलेंस बना के रखते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी इंटरप्शन ज्यादा ना हो और डिफेंस काउंसिल की भी बात अधूरी ना रह जाए। आवाज आ रही है अच्छा जी? जी सर बिल्कुल आ रही है। ठीक, इतना तो लगभग समझ में आ गया सब आपके बच्चों को, छात्रों को, स्टूडेंट को, लाइव स्टूडेंट। यस सर। और बताइए कोई सवाल हो किसी को, इतने में समझ में क्या क्या आया, अब आप लोग बताओ। मेनी मैन If मेनी the मैन। students has any questions, they can ask यस sir. यस, एनी क्वेश्चन on the side of student? Any doubts? मेघा, विकास, जोशना, मारिया, हाँ जी सर। जितेश, अदिति, गार्गी, कितने अच्छे अच्छे नाम है आपके स्टूडेंट के। सर कोई विटनेस झूठ बोल रहा है, ये कैसे समझे? कोई विटनेस झूठ बोल रहा है, शपथ दिलाई आपने उसे, शपथ तो पहले दिलाई जाती है, तो शपथ दिलाइए। फिर उसके बाद झूठ बोल रहा है तो उसके झूठ के लिए अपना पूछते चले जाओ, लगातार प्रूव हो जाएगा कि झूठ बोल रहा है। 50% गवाह झूठ बोलते हैं, 50% गवाह विटनेस बॉक्स में आते हैं और बनाए हुए फैब्रिकेट होते हैं। जनरली परिवार वाले, मर्डर के केस में परिवार के लोग कर दिए जाते हैं, NDPS के केस में पुलिस वाले कर दिए जाते हैं, और इस तरह से बना दिए जाते हैं अपने केस को मजबूत करने के लिए। यही कारण है कि हमारे यहाँ एक्यूटल रेशियो ज्यादा है। अब लेकिन जो नई VNS और VNS आई है, इसमें परिवर्तन, इसमें CCTV रिकॉर्डिंग, मोबाइल रिकॉर्डिंग, चैटिंग, फोटो, व्हाट्सएप, ये इंपॉर्टेंट विटनेस के रूप में आ गए हैं। तो आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, यह सुना है ना बच्चों आप लोगों ने, आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। तो निश्चित तौर पर अब आईने का काम करेगी नया कानून, तो उसमें परिवर्तन आएगा पहले से अब में। अब CDR झूठ नहीं बोलती है, कॉल डिटेल झूठ नहीं बोलती है। ये आप पे डिपेंड करता है CDR कितनी निकलवा के अपने केस को प्रूव कर पाते हैं। डिपेंड अपन यू, इट इज डिपेंड अपन डिफेंस काउंसिल, इट इज डिपेंड अपन कंप्लेनेंट एडवोकेट। आप कंप्लेनेंट की तरफ से हैं, शिकायतकर्ता की तरफ से हैं, मृतक के परिवार की तरफ से हैं, तो आप कितना अपने केस को, पुलिस नहीं चाह रही, आप कितना मजबूत कर पा रहे हैं, कितना वीडियो दे सकते हैं, CCTV दे सकते हैं, CDR दे सकते हैं, विटनेस दे सकते हैं, प्रेजेंस दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। डिपेंड अपन यू। सर जैसे आपने कहा कि जो फोटोकॉपी है वो मार्क लगती है और ओरिजिनल सर एग्जिबिट लगता है, पर कई बार सर ये तो होता है कि ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं आया होता पर सर्टिफाइड ले आते हैं, तो सर वो हाँ, सर्टिफाइड जो लगेगी। सर्टिफाइड, अगर ओरिजिनल सर्टिफाइड है तो एग्जिबिट होगा, और सर्टिफाइड में भी फोटोकॉपी है तो मार्क होगा। सर जैसे ओरिजिनल अगर नहीं लाए पर सर्टिफाइड है, इट इज स्टैम्प्ड दैट इट इज सर्टिफाइड। नहीं, उसमें ये लिखा होता है ना, फोटोकॉपी की सर्टिफाइड है या ओरिजिनल की सर्टिफाइड है, ये आपको देखना। ठीक है सर। ओरिजिनल की सर्टिफाइड एग्जिबिट होगी, और वो एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट और मार्क डॉक्यूमेंट में आधे आधे का फर्क होता है। अगर वजन तोलेंगे डॉक्यूमेंट का तो 100 नंबर देंगे एग्जिबिटेड को, 50 देंगे मार्क को। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल होते ही नहीं, आजकल कंप्यूटर जनरेटेड आते हैं, ठीक है सर। तो उसका वही महत्व होता है। तो सर सर गुड जिसने इवनिंग। सर्टिफाई जिसने ओरिजिनल से किया है सर, तो उसको भी एज ए विटनेस बुलाना जरूरी है कि कैसे वो प्रूव बुला होगा? सकते हैं, आप पे डिपेंड, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो बुला सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। Sir, good evening. Sir, my question is that the information available in government domain like gov.in or state government domain, sir, is it admissible as evidence in court of law, sir? हाँ, इट इज एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। And sir, report of standing committee of various sir ministries in parliament, sir.
their report Number of submit. cases, what happened? Just you remember, the case of Hathras Stampede, you see, last in the July, 2 July, 2nd July of 24, I fought this case up to. In that case, Judicial Commission was appointed by the government of Yogi government, by the Chief Minister of Uttar Pradesh. Then the judicial report, after conclusion of all witnesses, Judicial Commission with comprising three, one Honorable High Court retired judge, one IAS, one IPS. They gone through all witnesses, video, CD, CCTV cameras, affidavits, and after then got each and everything. And after then report submitted by the Judicial Commission before the Assembly. Member of Legislative Assembly argue on that point. Ruling party and opposition both. After then copy supplied, and I exhibited that Judicial Commission report before the trial court. That will be exhibited. Sir, I'm asking report published by department related standing committee, sir. Whether the report published in it is admissible, sir, as evidence in court of law. Admissible as evidence. Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है, अच्छा जी, हो गया. सर स्टूडेंट्स आपसे सुनना चाहते हैं आपके कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपके रहे हैं कुछ बहुत इनफेमस केसेस में. एक्सपीरियंसेस तो जीवन है, रिपोर्टेबल केस है, पढ़ लेना. सारे रिपोर्टेबल केस, निर्भया केस रिपोर्टेबल है, आपको किताबों में, कोर्स में, सिलेबस में मिलेगा. किसान आंदोलन जो लड़ा हमने, स्टे दिलाया, वो भी मिलेगा आपको, रिपोर्टेबल है. गायत्री मिशन संस्थान परिवार का केस था, वो लड़ा. आनंद मोहन सिंह का, वो भी रिपोर्टेबल हो जाएगा. ब्रजभूषण सिंह प्रकरण हुआ था, बाहुबली, वो भी है. और रामपाल बरवाला कांड हुआ, वो भी रिपोर्टेबल केस है बहुत. ये सब इसमें रिपोर्टेबल तो पड़ जाते हैं. उसमें अब डिपेंड करता है. अब मैं अनुभव अपने डिफेंस काउंसिल के हिसाब से बताऊं, समझिए आख्या जी. और आपके यहाँ 3 हेड हैं. कुछ जज बनाने हैं हमें आपके सेमिनार के बाद, लॉ बनने के बाद, लॉयर बनने के बाद कुछ जज बनाऊंगा, कुछ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाऊंगा, कुछ डिफेंस काउंसिल बनाऊंगा, कुछ कॉर्पोरेट लॉ में जाएंगे. सबका अलग अलग नजरिया होगा, अलग अलग. कोई कहेगा आधा गिलास खाली है, आख्या जी, कोई कहेगा आधा गिलास खाली है, कोई कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है. पानी उतना, एपी सिंह तो वही रहेगा, अंदाजे बयां, अंदाजे नजरिया अलग होगा. कुछ नेता बन जाएंगे तो राजनीति के लिए केसों को कैसे करेंगे, जैसे नरेंद्र गिरी का हुआ, कंप्यूटर बाबा का हुआ केस, तो राजनीति से प्रेरित होते हैं. कई पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस हो जाते हैं जीवन में, कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ लव अफेयर वाले होते हैं, वो भी सब पब्लिक डोमेन में. हमारे पेज डॉक्टर लायर पे जितने आप लोग जुड़े हुए हो, हमारा पेज है सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है डॉक्टर लायर, उससे देख लिया करो, लगभग उस पर केसों का रहता है, लाइव होता है, तो काइंडली म्यूट योरसेल्फ. ओनली काइंडली म्यूट योरसेल्फ. If anybody has any questions, you can ask sir. I think sir is in a bit of hurry. Sir, any cross-examination you remember which was very hard for you to crack? An interesting cross-examination. Nothing is hard. Nothing is hard. Nothing is willing hard. Or any interesting cross-examination you remember? कुछ भी कठिन मैंने जीवन में कठिन माना नहीं. मैं बच्चों आपको बताऊं, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं. That's good, sir. कभी मानना भी मत. Yes, sir. कहते ना, वो पथ क्या, वो पथ क्या, क्या, हेलो, क्या नाविक क्या धर परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल, उल्टी धाराओं के केस हमारे पास आते हैं, उन्हें पार लगाना ही हमारे पास सीधा सीधा कोई आता भी नहीं. जनरली सब बिल्कुल हताश, निराश, परेशान आते हैं, तभी हम उसको कर पाते हैं.
Thank you, sir, for your inspiring words. हाँ, ये याद रखना जीवन में। और कभी मुझे मिलूं, जज बन जाओ, वकील बन जाओ, जब मैं पहुंचूं बुजुर्ग होके रो के कहना, बेटा प्यार की बात मुझे याद है, मुझे बड़ा गर्व है। Thank you, sir. थैंक यू। ठीक है, ओके आख्या जी, कंक्लूड कर दें अब। Thank you so much, sir. Thank you so much for sparing your time. Thank you so much. Sir had to leave early and he was in a bit of hurry. So next class on art of cross examination is scheduled for 7 to 8 by Ritvik Mittal, sir, who's a Supreme Court advocate. You guys can leave this class and another link will be shared to join the next class. Thank you. Bye. Kindly mute yourself while the class is going on, please, please.